Let's start. So now let's start with this exercise 7.4. Look at this question number 1 here. So that the question 1 is so that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. So hypotenuse triangle में longest side is this, hypotenuse is the longest side. So we all know that hypotenuse is the longest side, but now we need to prove it, right? So how to prove it? So first of all, let me draw a triangle here. That triangle is okay. So this is the triangle. Suppose it is triangle ABC. And what we need to prove here, it is given that this angle is 90 degree. It is given in the question. So what is given here in the question? Let me write it here. Given a question में angle B is 90, right? And what we need to prove? We need to prove AC is the longest side. AC is the longest side, right? So now proof. सर हम सर एंगल ए प्लस बी प्लस सी को सर 180 करके कर सकते Okay. How? Elaborate it. So we know that the sum of angles A and C will be 90 degrees. Okay. Angle sum Yes, sir. And sir, we also know that the side opposite to the biggest angle is the longest side. So sir, Okay. Yes, yes. You are saying right. एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी कर दो Okay. Angle A plus angle C is equal to 90 degree, right? यस सर This is the first thing. Second thing is that angle B is equal to 90. Angle sum property से if you look at this. So ये अकेला 90 डिग्री है और ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं. So इससे हमें ये पता लगता है कि एंगल B अकेला इन दोनों से बड़ा है. एंगल B is greater than angle C and angle A also. So we can say like that. क्या बोल सकते हैं? Yes. एंगल B एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल B एंगल C से भी बड़ा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं. सपोज ये 60 होगा तो ये 30 होगा, राइट? तो 60 भी 90 से छोटा है, 30 भी 90 से छोटा है. सपोज ये 89 डिग्री होगा अगर, तो ये 1 डिग्री होगा. दोनों का सम 90 आना चाहिए. तो 89 भी 90 से छोटा है और 1 भी 90 से छोटा है, राइट? आई होप दिस थिंग is clear to you. So from 1 and 2 we conclude that. So we conclude this thing from equation 1 and 2, right? Now अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जो अभी बता रहे थे आप. तो एंगल द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट. जो सबसे बड़ा एंगल होता है ट्रायंगल में, उसके जो अपोजिट में जो साइड होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. सो एंगल ए is the greatest angle. So according to theorem, सर एंगल बी है ना ग्रेटेस्ट angle A, sorry, yes, I have written it wrong. So it is not A, it is B. Angle B is the greatest angle. So according to theorem, side opposite to angle B, side opposite to angle B is the longest side. So this is proved. Hence hypotenuse is the, so we can say that hence hypotenuse AC क्या है यहाँ पे? AC is the hypotenuse. तो इसके longest side, तो यहाँ पे AC आ गया. So therefore AC is the longest side and so hypotenuse is the longest side in the right angle triangle. Hypotenuse is the longest side. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम. इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल नाउ. Sir, यस. sir, can you please re-explain it?
सो बेसिकली इसमें हम लोग एक बार और बता देता हूं, इसने बोला था कि AC को सबसे बड़ी साइड प्रूव करो, ये सबसे बड़ी साइड होगी, बड़ी, इसको बोला था उन्होंने, इसको बड़ी प्रूव करो, सबसे बड़ी, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी। तो हमने इनको बोला कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये सबसे बड़ा है, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव कैसे किया सबसे बड़ा है, हमने कहा ये तो दोनों मिलके 90 के इक्वल है, ये अकेला ही 90 है, तो इसका मतलब ये एंगल जो बी पे बन रहा है वो ए से भी बड़ा है और ये सी से भी बड़ा है, तो इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है। सो द साइड अपोजिट टू सबसे बड़ा एंगल इज द, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इज द सबसे बड़ी साइड, सो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने इसको लिख के दिखा दिया है, बस इतनी सी बात है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. Okay. So now let's move to the next question. Look at this question number 2 here. In figure 7.48, side AB and AC of triangle are extended to P and Q respectively. Also, angle PBC is smaller than angle QBC, so that AC is greater than AB. क्या क्या given है लिख लेते हैं पहले. Let us try to understand the question. The given data in the question is ABAC triangle है, extend कर दिए, तो one thing is given, angle PBC is less than angle QCB. कहाँ है ये PBC? PBC यहाँ पे है और QCB यहाँ पे है, ये वाले एंगल, तो ये एंगल छोटा है किससे? QCB से, तो ये छोटू है और ये बड़ा एंगल है, राइट। Now what we need to prove in this question? To prove, क्या बोला है, ये क्या करके दिखाने के लिए बोला है, ये AC को ग्रेटर करो AB से, तो उन्होंने बोला है ये करके दिखाओ, AC को AB से बड़ा प्रूव करके दिखाओ। कहाँ है AC? ये है AC, कहाँ है AB? ये है AB। अब बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन में गिवन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो योर 50% क्वेश्चन डन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि करना क्या है और गिवन क्या है, तो बस आपको ये सोचना है कि करना कैसे है। In this type of proving questions, the lot of problems are there that we do not understand what is given in the data and how to use it and what we need to prove in this question. Now let's start with this question. So हमें AC को AB से बड़ी प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पे जो एंगल है आपका, एंगल PBC जो है और एंगल ABC जो है, इन दोनों का सम कितना आएगा? Think about it and tell me. Angle QCB plus angle ACB. What is the sum of that two angles? Sir, 180 linear pair. Yes, it's 180, right? Absolutely right. It's equal to 180 and it's equal to 180, right? Now, I hope this thing is clear to you. How I take it 180? So I have taken this angle and this angle, this angle and this angle, right? So these angles are 180 degree. Now the next thing is, can I find out from here? PBC में find कर सकता हूँ, what is PBC in this case, and from here what is QCB? क्या होगा? PBC होगा 180 minus, if I shift this ABC on this side, ABC
and this equal to 180 minus ACB, right? Suppose these are the two equations. Now अब क्या करूंगा मैं, मुझे गिवन क्या है क्वेश्चन में, मुझे गिवन है एंगल PBC इज छोटा किससे, एंगल QCB से. सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ PBC की वैल्यू है मेरे पास, इट्स 180 माइनस ABC इज लेस देन, मैंने PBC की जगह पे रिप्लेस कर दिया है, एंड QBC की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहां से, इट्स 180 माइनस ACB, राइट. इफ आई शिफ्ट दिस 180 ऑन दिस साइड, या इसको मैं 180 को इधर शिफ्ट करूं अगर, तो ये हो जाएगा माइनस एंगल ABC इज लेस देन 180 माइनस ACB. तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल, ये लेस देन और ग्रेटर देन, और जो इक्वल टू का साइन होता है इक्वल टू की तरह ही बिहेव करेगा, और ये देखो 180 इधर आके माइनस 180 हो जाएगा, साइन चेंज द साइन. सो दिस कैंसल दिस ईच अदर. सो अब यहां से क्या आया, माइनस ABC इज लेस देन माइनस ACB. कैन आई कट दिस माइनस साइन फ्रॉम हियर? क्या मैं माइनस साइन को इससे इसको हटा सकता हूं, काट सकता हूं, काट सकता हूं. अब विच वन इज ग्रेटर? तो जब मैं इन माइनस साइन को कट करूंगा इधर से, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, दिस साइन टर्न्स ऑन दिस साइड. आस्क व्हाई इट टर्न्स? Why, sir? ओके. अब आप अगर मैं यहां पे लिखूं -4 और यहां पे लिखूं -3, विच वन इज ग्रेटर? Sir, -3. Okay. And if I remove this minus sign, so what will happen? Sir, If I write angle it 4, if I write 3, so Yes, sir. which is greater? 4 will be greater. Sir, Four- 4 four बड़ा is होगा. greater. तो इधर इसको साइन को रिवर्स करना होगा आपको, माइनस साइन हटा के, क्योंकि जो नेगेटिव Okay. वाला नंबर है, जिसके नेगेटिव वाला नंबर जैसे -4 है, तो जो नंबर बिगर होता है, जैसे 4 डिजिट बिगर है, उसके सामने माइनस लगाते हैं तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है. और जब माइनस साइन को हटाया 4 के सामने से, तो ये बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया 3 से. I hope this thing is clear to you all with this example. Yes, sir. So this is the property of the linear inequalities you have studied in higher classes. ये linear inequalities बोलते हैं, in class 11th you studied about this. So if you cut the minus sign in this type of cases, so then the sign will reverse. साइन रिवर्स हो जाता है. वरना आप एक काम भी कर सकते थे, ACB को इधर ले आओ, अगर आपको माइनस साइन कट नहीं करना तो आप ACB को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, और ABC को इसको इधर ले आओ तो इट बिकम ABC. तो अब देखिए किसकी तरफ खुला हुआ है, ब्रैकेट किसकी तरफ ओपन है, ACB की. तो मैंने किसकी ACB. तरफ, ब्रैकेट है हमारा, सॉरी ब्रैकेट तो मुझे चेंज नहीं करना चाहिए था, मैंने चेंज कर दिया, चेंज नहीं करना चाहिए था, मैं तो उन्हीं को तो शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये तो इधर ही था, इधर ही रहेगा. तो आई हैव जस्ट शिफ्टिंग दैट थिंग, नॉट कटिंग द माइनस साइन. अब देखो ब्रैकेट किसकी तरफ ओपन है, ABC की, तो ABC की तरफ ही तो ओपन किया है मैंने, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू अप टू हियर. मैंने किया क्या है, अब मैंने इस एंगल को और इस एंगल का रिलेशन निकाला है, ठीक है. ये एंगल जो ABC है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो रिलेशन आया है हमारा, ABC बड़ा है और ACB छोटा है. सो दिस एंगल इज बड़ा एंड दिस एंगल इज छोटा, ठीक है. ये दही बड़ा नहीं, ये एंगल बड़ा, ये एंगल बड़ा है, दही बड़ा भी होता है, ओके. और ये एंगल छोटा है. दही बड़ा खाया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. ओके, मैंने सोचा कभी आप लोगों ने ना खाया हो. ओके. सो अगर ये एंगल बड़ा मैंने प्रूव कर दिया है, तो इस बड़े के अपोजिट में साइड कैसी होगी, बड़ी या छोटी? द साइड अपोजिट टू द बड़ा एंगल इज ऑलवेज बड़ी. दिस इज द थ्योरम वी हैव डिस्कस. एंड द साइड अपोजिट टू द छोटा एंगल इज ऑलवेज छोटी. So this thing we have discussed. The side opposite to the greatest angle is longest, and the side opposite to the smallest angle is smallest, right? तो छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, ये थ्योरम है.
ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर कैन आई सेज दैट बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो यहां से मैं इसको बोल सकता हूं, सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट ए सी, सो आई कैन कंक्लूड दैट ए सी इज ग्रेटर देन ए बी अकॉर्डिंग टू थ्योरम side opposite to greatest angle is longest. So according to theorem I can say that AC is greater than AB. ठीक है, this is what we need to prove in this question. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार और बता देता हूं। तो मैंने बेसिकली ये एंगल बड़ा गिवन था, लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स। सो दिस एंगल इज बड़ा गिवन था यहाँ पे, दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज छोटा। सो बेसिकली मैंने अब इसको बोला अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो दोनों का सम तो 180 है, तो ये एंगल बड़ा आएगा और ये एंगल छोटा आएगा। तो छोटा, ये बड़ा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अगर ये बड़ा है तो ये एंगल छोटा आएगा। तो बड़ा छोटा दोनों साथ होते हैं, तो ये अगर ये बड़ा है तो दोनों का सम 180 है, तो ये छोटा आएगा ऊपर वाला, और ये छोटा है तो ये एंगल कुछ गलत कर रहा हूं मैं आपको एक गलत बता रहा हूं यहाँ पे ना, ये मैंने उल्टा लिख लिया, ये बड़ा नहीं था ये छोटा था, इसलिए कुछ कंफ्यूजन हो गया। ये एंगल देखो यहाँ पीबीसी क्या गिवन है, एंगल बड़ा, तो इसको बी ले लिया, और ये एंगल छोटा, इसको ले लिया सी। तो अगर ये बड़ा है तो ये एंगल कैसा आएगा, फिर गलत लिख दिया मैंने, PBC is smaller than QCB. So this angle is smaller and this angle is bigger, this one. And if this is smaller, so then this is bigger, and if this is bigger, then this is smaller. So the side opposite to the bigger angle is the longest side. तो इसकी longest side है इसके comparative. I hope this question is clear to you now. So this is the concept in the question. Now look at this question number 3 here. In figure is given, good. B is smaller than A, C is smaller than D, so that AD is smaller than BC. So let me write the given data first. Angle A, इसको मैं थोड़ा रिवर्स करके लिख रहा हूं, एंगल A is greater than एंगल B. Can I write like this? ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, एंगल B is smaller than A, or I can write like this, एंगल A is greater than. Is this clear to you? इसमें तो Yes, कोई sir. कंफ्यूजन नहीं आ रहा। अब ये देखो C इधर लिखा है, D इधर लिखा है, तो मैं अगर D को इधर लिखना चाहूं और C को इधर लिखना चाहूं, तो इधर ब्रैकेट किसकी तरफ ओपन है, D की तरफ ओपन है, तो इधर ओपन कर देता हूं। सो दिस थिंग इज गिवन, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन इज, प्रूव हमें करना है AD है BC से छोटी। अब फिगर देख लेते हैं, AD कहाँ है, AD कहाँ है, AD पैरों की तरफ क्यों देख रहे हैं, उस AD की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। AD No, यहाँ sir, पे, I am writing the notes. अच्छा प्रेरणा पैरों की तरफ देख रही है, हाँ यहाँ है AD नीचे इधर। I am writing the notes, that's ओके why. ओके, वैसे मैंने आपको बोला भी नहीं था, अब ऐसे ही बोल रहा था। ओके, जोक अपार्ट, नाउ कम हियर, कम ऑन द टॉपिक। सो ये वाली पैर वाली AD नहीं है, AD इज द साइड हियर। तो एक AD ये वाली साइड है AD, और BC कहाँ है, BC ये है, ये है BC। अब देखिए यहां से प्रूफ देखिए आप इसका। अब मुझे बताइए अगर एंगल A बड़ा है एंगल B से, तो इस बात से आपको क्या समझ में आता है। अगर इस ट्रायंगल में देखें आप ABC में, अगर एंगल A बड़ा है तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, OB, ठीक है, और एंगल B के अपोजिट में साइड कौन सी है, AO, OA. ठीक है। तो कौन सी साइड बड़ी होगी इसमें, OB या Sir, OB. OB बड़ी होगी, क्यों, Because angle is greater. यस एब्सोल्युटली राइट। सो AB और ट्रायंगल में तो ये समझ में आई बात।
एक नीचे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल सीडीओ। इसमें सीडीओ में दे रखा है, ट्रायंगल सीडीओ में यहां पे दे रखा है, सीडीओ में दे रखा है एंगल डी एंगल सी से बड़ा है। तो इससे क्या समझ में आता है, सी बड़ा है तो सी के अपोजिट में साइड ओडी और डी के अपोजिट में साइड ओसी। कौन सी साइड बड़ी होगी, ओडी बड़ी होगी या ओसी बड़ी होगी? सर ओसी। ओसी बड़ी होगी। कौन सा एंगल बड़ा है, डी बड़ा है, तो ओसी साइड बड़ी होगी। ठीक है, तो डी के अपोजिट में जो साइड है ये वाली, तो ये वाली साइड बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि डी एंगल बड़ा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिवर्स करके लिख लूं, ओडी यहाँ पे गलत पार्क कर दी मैंने, ओडी को इधर पार्क करता हूं और ओसी को इधर। ठीक है, तो ओडी बड़ा है ओसी, कौन बड़ा, ओडी या ओसी? ओसी। ओसी, यस। अब ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब आप फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ऑन एडिंग 1 and 2, तो ये बात समझ में आ गई आपको? आई एम यूजिंग द थ्योरम हियर, ऑन एडिंग 1 and 2। तो 1 की लेफ्ट साइड को ऐड कर दूं, OB प्लस OC, तो दोनों बड़ी बड़ी को ऐड कर दिया, अगर बड़े बड़े को ऐड कर दिया तो जो बड़ा बड़ा ऐड होके बड़ा ही आएगा। अगर आप छोटे छोटे को ऐड करोगे AO को OD से, तो लेफ्ट साइड से ऐड हो गई और राइट साइड से ऐड हो गई। तो छोटी छोटी साइड ऐड होंगी और बड़ी बड़ी साइड ऐड होंगी, तो बड़ी बड़ी साइड ऐड होके जो आएगा वो बड़ा आएगा, और जो छोटी छोटी साइड होंगी और छोटी छोटी साइड को ऐड करके जो आएगा छोटा छोटा आएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है, नहीं आई बात समझ में? सो आई एम सेइंग दैट OB प्लस OC इज ग्रेटर देन AO प्लस OD। Look at the figure and tell me what is OB plus OC in this figure. If I add OB and OC, what is that line? सर BC। BC. And if I add AO and OD? AD। AD. तो BC इसकी जगह पे मैं BC लिख लूं, आपने बोला, और इसकी जगह पे मैं AD लिख लेता हूं। तो हमें प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में? प्रूव तो हमें इसमें करना था AD, इसमें प्रूव तो हमने ये करना था कि AD और ये, और AD तो इधर आ रहा है और BC इधर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। नहीं हो गया कुछ गलत? एनीथिंग हैपन रॉन्ग हियर? सो वी नीड टू प्रूव दिस, और हमारा प्रूव ये हो गया। सर सही था, उनको चेंज कर देंगे उनकी प्लेसेस अच्छा। और साइन उल्टा कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही तो है। AD को इधर रख दो, BC को इधर रख दो। किसकी तरफ खुला हुआ है ब्रैकेट? BC की, तो BC की तरफ ही ओपन रहेगा। BC। इसको इधर लिखा तो ब्रैकेट भी इधर घूम जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये सही है, क्या गलत है इसमें? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो इट्स हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4. If you look at this question number 4 here, AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral. ठीक है, लिख लेता हूं इसको पहले जल्दी से। गिवन क्या है? गिवन है AB है इस क्वाड्रिलेटरल की स्मॉलेस्ट साइड, ओके, और CD है इस क्वाड्रिलेटरल की लॉन्गेस्ट साइड। क्वाड्रिलेटरल की फिगर गिवन है। तो जब मैं स्मॉलेस्ट को, स्मॉलेस्ट का देयर इज अ सिनोनिम वर्ड इन हिंदी, स्मॉलेस्ट दैट इज छोटी, एंड लॉन्गेस्ट को, लॉन्गेस्ट इज अ सिनोनिम वर्ड, ये एक पर्यायवाची शब्द है इसका हिंदी में। इसको छोटा बोलते हैं, इसको बड़ी बोलते हैं। तो ये छोटी और बड़ी मीन्स, इफ आई एम सेइंग दैट छोटी, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये छोटी कौन आ गई? कई बार छोटी नाम भी होता है घर में कि छोटी इधर आओ, तो वो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। जो सबसे छोटा होता है उसको छोटी बोलते हैं। ओके, सो दिस छोटी एंड बड़ी इज फॉर, आई एम यूजिंग दिस वर्ड फॉर स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। छोटी, ओके। ये चोटी कौन कह रहा है? चोटी, चोटी भी होती है, ओके। तो इट्स नॉट चोटी, इट्स छोटी, ओके। नाउ ये गिवन है, ठीक है, लिख लिया। करना क्या है? ये करके दिखाओ, ये बोला है उन्होंने। ये करके दिखाओ। एंगल ए को
ग्रेटर एंगल सी से और एंगल बी को ग्रेटर एंगल डी से। तो ये बोला उन्होंने, ये करके दिखाना है हमें, ठीक है। तो कैसे करें, एंगल ए कहाँ है, ये एंगल ए, एंगल सी कहाँ है, ये एंगल सी। तो एंगल ए को सी से बड़ा करना है। अच्छा, एंगल ए को एंगल सी से बड़ा करना है, ठीक है। हाँ, बड़ा करते हैं इसको। इसके लिए हमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे, प्रूफ। सो आई नीड टू ज्वाइन दिस, इसको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन AC। AC को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। So let me write it here. Join AC, right? Let me join it again. ये अच्छी नहीं बनी, दोबारा ज्वाइन करता हूँ। AC पे, ओके, नाउ इट्स गुड। अब आप इसमें ये बताइए मुझे, इसमें इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC। अब आप मुझे ये बताइए, AB BC बड़ी है या AB? Yes, anyone tell me, BC is greater or AB is greater? AB इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है और CD इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है। तो इसमें BC बड़ा होगा या AB? सोच के आना, इसको नेक्स्ट क्लास में कराता हूं आगे। आराम से सोचो आज बैठ के शाम तक, AB बड़ा है या BC बड़ा है। And we will continue from here in the next class. So that's all for today. It's time up to rest of the thing in the next class. Yes, someone asked something. ओके सर। नहीं सर, मैं कह रहा था कि शाम तक सोचेंगे। Okay, इसको सोच के रखना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। That's all for today. थैंक यू सर। Okay, welcome.